where we stopped last week. जहाँ पिछली बार हफ्ते हम रुके थे वहीं से हम आगे चलेंगे. We spoke about bearing fruit. हमने फल लाने पे बात करी थी. How the Lord gave a simple formula how to recognize His people as compared to false people, false teachers. और कैसे प्रभु ने एक सीधा सा एक नियम बताया कि कैसे उसके लोगों की पहचान की जा सकती है झूठे प्रचारकों की तुलना में. In Matthew 7 chapter verse 15 and verse 20 it says, you will know them by the fruit. मत्ती 17वां अध्याय उसकी 15 से हम 20वें आयत में 7वां अध्याय 15 से 20 में पढ़ते हैं कि तुम उनको उनके फल से जानोगे. And we spoke about fruit last week in the context of being successful in whatever we are called to do, especially doing good works, bearing fruit in every good work. और पिछले हमने देखा था कि हम जो काम करते हैं उससे हमारी पहचान होती है और हमें बुलाया गया कि हम भले कामों में फलवंत बने. How when we walk with the Lord, our life will be a blessing to people and people look at that life and they glorify God. और कैसे जब हमारे जीवन को लोग देखते हैं तो हम उन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं और परमेश्वर के लिए हम सेवक बनते हैं. That's one aspect of fruit. और ये फलवंत होने का एक पहलू है. One more very important aspect of fruit is for us to bear the fruit of the Spirit. और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आत्मा के फल लाएं. In Galatians chapter 5 verses 22 and 23 we read. गलतियों 5वां अध्याय 22वीं और 23वीं आयत में हम पढ़ते हैं. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. And God wants the people of this world to see this fruit in the life of every Christian. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मसीह के जीवन से ये फल दिखाई दे. And as we live a life led by the Spirit, live a life of faith and by the Word of God, ultimately this fruit will be seen in our lives. और जब हम परमेश्वर की आत्मा से उसके वचन के अनुसार विश्वास से चलते हैं तो हमारे जीवन से ये फल दिखाई देने लगते हैं. Now in the book of Hebrews in chapter 13 verse 7 we read. इब्रानियों 13वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं. Where the writer writes and says, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of the way of life and imitate their faith. 7वीं आयत में लिखा है कि तो जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया था उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो. See the outcome of the way of life. Is there fruit in their lives? और उनके जीवन से हम देखते हैं कि उनके जीवन से फल दिखाई दे रहा है. Now, fruit by definition is the result of a seed. और जो फल है उसका शुरुआत उसकी होती है एक बीज से. A seed is sown, then it grows, it becomes a plant, it becomes a tree, and after some time it bears fruit. जब बीज बो दिया जाता है तो उसमें से वो छोटा पौधा निकलता है, फिर वो एक पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर कुछ समय के बाद उसमें फल लगने लगते हैं. And there are different stages of bearing fruit. From the seed to the fruit, there are different stages. There's a time interval. और बीज से लेके फलवंत होने तक के बीच में एक समय का थोड़ा अंतराल होता है और वो धीरे-धीरे इस चीज में प्रक्रिया आगे बढ़ती है. Fruit is the end part of a process. और फल जो है ये पूरी प्रक्रिया का अंत है. That's why in the letter of Hebrews it says, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of the way of life. Look at the end of their lives. और इसलिए वो कहता है तुम अपने अगुवों का अनुसरण करो, उनके जीवन के अंत में उनका कैसा उनका चाल चलन था उसको देखो. And imitate their faith. और उसके पीछे तुम भी चलो, उसका अनुकरण करो. Because as we live by faith, तो जब हम विश्वास से चलते हैं, Romans 1:17, रोमियो 1:17 के अनुसार, as we live by the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, Matthew chapter 4 verse 4, मत्ती 4 अध्याय उसकी 4 आयत के अनुसार, and we live by the Spirit, और हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, Galatians 5:16, गलतियों 5:16 के अनुसार, in the end there will be fruit. उसके अंत में फल दिखाई देगा. Please remember, it's a fruit of the Spirit. तो याद रखें कि ये आत्मा का फल है. It's a fruit of the Spirit born by the Spirit in the life of every Christian. ये आत्मा का फल है, हर एक विश्वासी के जीवन से ये फल आता है. All of us as God's people are called to live by the word, live by faith and live by the Spirit. और हम सब जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, हमें बुलाया गया कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की विश्वास के अनुसार हम चलें.
When you live by the Spirit, through the Holy Spirit, one of the manifestations of the Spirit is the gift of faith He gives us. और विश्वास की जो एक बात है, वो जो दान दिखाई देता है, वो है जो एक दान परमेश्वर ने एक फल हमारे जीवन में दिया है. 1 Corinthians 12 chapter verse 8. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत. He gives the word of wisdom for us to and the gift of faith, verse 9. और वो हमें बुद्धि की आत्मा का फल देता है, विश्वास और आत्मा से विश्वास को देता है. And therefore we able to live by faith when we live by the Spirit. और तो जब विश्वास से चलते हैं तो हम आत्मा के अनुसार भी चलते हैं. And also the Holy Spirit teaches us the scriptures. और पवित्र आत्मा जी हमें वचन की शिक्षा देते हैं. He is our teacher. He is the one who inspired people to write the Bible. और पवित्र आत्मा जी ने ही लोगों को उभारा कि वो पवित्र शास्त्र को लिख सके. And he teaches us the scriptures. और हमारे को पवित्र शास्त्र को शिक्षा भी देते हैं. He will teach us and he will remind us. John 14:26. और यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत के अनुसार वो हमारे को शिक्षा भी देता है. So as we choose to live by the Spirit, in the course of time, the Holy Spirit will bear the fruit in our lives. 9 qualities of the fruit. तो जब विश्वास के साथ चलते रहते हैं तो समय के हिसाब से पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में 9 जो फल हैं, आत्मा के फल का जो गुण है, वो हमारे जीवन से दिखाई देते हैं. And the Lord has given us a Spirit to be in us forever. और ये आत्मा प्रभु ने हमें दिया है कि हमारे लिए हमारे साथ अनंत काल तक रहे. That's why in Romans 8:14 it says, as many as are led by the Spirit of God are sons of God. और इसीलिए लिखा है रोमियो 8:14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. Not living by the Spirit means we're living by the flesh. और आत्मा के अनुसार अगर हम नहीं जी रहे तो इसका मतलब हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं. The Spirit and the flesh are always in conflict. और शरीर और आत्मा ये दोनों आपस में विरोध में रहते हैं. And Christians can sometimes live by the flesh, not by the Spirit. और बहुत दफा ऐसा होता है कि मसीह लोग जो है आत्मा के अनुसार ना चल के शरीर के अनुसार चलने लगते हैं. That's because their minds are very often controlled by the sinful nature rather than by the Spirit. और इसलिए होता है कि उनका जो स्वभाव है वो पाप के अनुसार चलता है, आत्मा के अनुसार नहीं चलता. So bearing fruit also means God wants the fruit of the Spirit to be seen by people around us in the lives of each one of us. तो आत्मा का फल का मतलब प्रभु चाहते हैं कि हम जहां पे भी हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, वो लोग हमारे जीवन से उस फल को देख सकें. And we're going to see our role in the Lord bearing the fruit in our lives. और हमारा उसमें क्या योगदान है कि हमारे जीवन से वो फल आए, उसमें हमारा क्या योगदान है. We are God's fellow workers. We are co-laborers with the Lord. हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 says we are co-laborers with the Lord. पहला कुरिन्थियों 3:9 के अनुसार हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं. Of course, the context of that verse is the Apostle Paul explained to the church in Corinth how he and Apollos are co-laborers with God in the ministry towards people. और इसका संदर्भ में था कि कैसे पौलुस और अपोलोस जो थे ये दोनों प्रभु के साथ सहकर्मी थे कलीसिया की सेवकाई में. Not only we are God's co-laborers in him working through us to other people. और ना केवल ये कि हम प्रभु के सहकर्मी हैं कि प्रभु हमारे में से होके लोगों की सेवकाई करे. We are also God's co-laborers in him working in us. और हमें सहकर्मी इसलिए बुलाया गया कि प्रभु हमारे अंदर काम करे. He works in us and we must let him work in us. We should let our minds be controlled by the Spirit and receive what he has for us. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी काम करे. हमें होने देना है कि परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में वो हम काम करने दें. He works in us, we must allow him to work in us. प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है और हमें उसको उस काम करने की इजाजत देनी चाहिए. We are the clay, he is the potter. वो हम मट्टी हैं और वो हमारा कुम्हार है. And for the potter to work in the clay must be soft, flexible, moldable. और इससे पहले कि कुम्हार उस मट्टी पे काम करे, वो मट्टी को होना चाहिए वो चिकनी हो, नरम हो और मोड़ने लायक हो. If it's hard, the potter can work. अगर वो सख्त मट्टी है तो कुम्हार उससे काम नहीं कर सकता. We must leave ourselves in God's hands and let him have full control of our lives. हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देना है और अपने जीवन का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में सौंप देना है. So how can we be God's fellow workers, co-laborers in him, working in us in such a way that the fruit is seen in our lives? तो हम जीवन में कैसे उसके सहकर्मी बने कि प्रभु को अपने जीवन में काम करने दे ताकि हमारे जीवन से वो फल दिखाई दे.
all 9 qualities of the fruit of the Spirit. ये सारे 9 गुण हैं आत्मा के फल के। Remember, it is a fruit of the Spirit, not fruits. और याद रखें कि ये फल है, कई फल नहीं है ये। So one fruit with 9 qualities. एक ही फल है जिसके 9 गुण हैं। It's like apple having a stem, having a skin, having a inside the actual apple. And there are so many aspects of fruit, different parts. तो जैसे सेब के कई भाग होते हैं, उसकी डंडी होती है, उसके बाहर का छिलका होता है, उसके बीज होते हैं, फिर सेब खुद होता है। इस तरह से कई भाग होते हैं। And there's seed inside also. और उसके अंदर बीज भी होता है। So it's one fruit with many aspects to it. तो एक फल है जिसके बहुत सारे गुण हैं। The same way, the fruit of Spirit means 9 qualities. और इसी तरह से आत्मा का जो फल है उसके 9 गुण हैं। And all 9 God wants to manifest in us and through us to other people, for them to look at us and wonder, these are people of God. तो परमेश्वर चाहता है कि ये 9 गुण हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि जब लोग हमें देखें तो वो अचंभा करें कि कैसे परमेश्वर के लोग हैं। So practically, how do we go about being moldable in God's hands for this fruit to be seen? तो हम कैसे अपने आप को ऐसा हाथ बनाएं कि प्रभु हमारे को मोड़ सके, ढाल सके, कि वो फलवंत हमारा जीवन हो सके। These 9 qualities I'm going to divide into 3 parts. इन 9 गुणों को 3 भाग में भाई बांटेंगे। First part is peace and joy. पहला भाग होगा आनंद और शांति। Second part is love, kindness, goodness, gentleness. और दूसरा है उसमें धीरज। No, not धीरज. Love, प्रेम, category. प्रेम, मेल और धीरज। No, not धीरज in the third category. Dhiraj is patience, no? Yeah. Love, kindness, goodness, gentleness. प्रेम, कृपा, भलाई, ये आएंगे। हाँ। Gentleness is actually meekness. Is actually humility. नम्रता। Okay. The second category. Third category is faith, patience, and self-control. और तीसरा भाग है कि विश्वास, संयम और धीरज। ना? Yeah, faith, patience, self-control. Vishwas, धीरज और संयम. So the 3 categories are there, and we're going to see how God has given the resources we need to be able to go about fulfilling the 3 categories in our lives. तो परमेश्वर हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में सब देता है कि तीनों जो भाग है इसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं। Let's take the first part. हम पहले भाग को देखेंगे। First category. पहला भाग। First category is peace and joy. पहला है प्रेम और आनंद। Now peace and joy, not प्रेम and आनंद, it's आनंद और शांति. Peace, शांति और आनंद, peace and joy. It's प्रेम in Bible. So शांति और आनंद, ठीक है। Love, joy, peace. I'm not looking at the 9 in the order in the Bible. Love, joy, peace. My category is not in the order of the Bible. Yes, they're confusing, very confusing. No. Those 9 qualities are in the, of course, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. No doubt. But then choosing out of the 9, 3 categories, they are in random order. The first order is peace and joy. तो ये 9 गुण है, इसको भाई हम एक जैसे बाइबल में सीधा लिखा है ऐसा नहीं देखेंगे, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो पहली जो भाग है वो है शांति और आनंद। So all 9 will talk about all 9, but I'm taking separately because there are 3 different categories I'm looking at. तो हम सब भागों को, सारे फलों को देखेंगे, पर अभी फिलहाल हम इस भाग को देख रहे हैं। Now peace and joy are conditional to obedience. और ये जो शांति और आनंद है ये एक शर्त पर निर्भर करता है कि हम conditional to obedience, आज्ञाकारिता पे। So the peace and joy is given to us at the point of time we accept Christ as Savior and Lord. और ये शांति और आनंद हमें उसी क्षण मिल जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Because peace means oneness with God. क्योंकि शांति का मतलब हम परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। It's ekta. In Hindi is ekta or oneness. एकता, हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। And joy is actually not different from happiness. Joy is anand in Hindi. And joy comes from knowing where we are going when we leave this world. We're going to heaven, therefore we have joy. और ये आनंद जो है वो ये है कि हम कितने खुशी होती है कि हम कहाँ पे हम जा रहे हैं, इस चीज की हमें बड़ा खुशी होती है। When you accept Christ as Lord, He comes into our hearts, the Spirit, and we have the assurance of salvation.
तो जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक आश्वासन आ जाता है कि हमारा उद्धार हो गया, हम एक बड़ा आनंद हमारे जीवन में होता है। And Christ in us is the hope of glory. Colossians 1:27. और कुलुस्सियों 1:27 के अनुसार प्रभु हमारे में हमारी महिमा की आशा है। And because we have the hope of glory, we rejoice. और क्योंकि हमारे में महिमा की आशा है, हम बड़े आनंदित रहते हैं। Now, rejoicing is a verb, the corresponding noun is joy. और ये जो शब्द है आनंद, इसका जो क्रिया उसकी संज्ञा जो है वो है खुशी। And the verb is rejoicing. और उसकी क्रिया अगर उसको हम देखें तो वो है कि हम आनंद करते हैं। So Romans 5:2 says, "We rejoice in the hope of the glory of God." That rejoicing is a kriya, it's a verb. और रोमियो 5:2 में जो क्रिया है उसको हम देखते हैं कि हम उसकी महिमा की आशा पे आनंद करते हैं। Because of the hope we have got. क्योंकि वो आशा हमारे पास है। The होप is because Christ lives in us. और आशा यह है कि प्रभु हमारे में निवास करता है। At the point of time we accept Christ as Savior and Lord, we've been given peace and joy at that time. जिस क्षण हम प्रभु को यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उसी क्षण हमारे जीवन में ये शांति और आनंद आ जाता है। We don't realize that, but it's Bible says that. हम इसको चाहे अनुभव हम इसको ना पहचाने, पर बाइबल बताती है ऐसा है। And thereafter, to preserve this peace and joy, we must obey the Lord. और इस शांति आनंद को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहना है। In John 16:33, the Lord told the apostles, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, I have told you these things that in me you'll have peace, in the world you'll have troubles. और प्रभु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। After teaching them many things, says, I have told you these things, I have taught you all these things, that in me you will have peace. और प्रभु उनको कह रहे, मैंने बहुत सारी बातें सिखाई हैं, पर इन बात पर तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। In the world you will have troubles. और संसार में तुम्हें क्लेश होगा। But take heart, I have overcome the world. और तू ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So the condition to preserve this peace is obedience. और तो एक शर्त है कि शांति आनंद को अपने जीवन में बनाए रखने की, वो है आज्ञाकारिता। And the peace is given us is His peace. The same peace He has is given to us. और ये शांति जो हमारे को दी है प्रभु ने, ये प्रभु की खुद की अपनी शांति है। In John 14:27 He says, "Peace I leave with you, my peace I give unto you." यूहन्ना 14:27 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। And then you find in John 15:11 He tells them, और फिर यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, I've told you this, that my joy will be in you and your joy will be complete. और मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So as we receive the peace and joy of the Lord, to preserve that, we must walk in obedience to His teachings. तो जब हमारे को प्रभु की शांति और आनंद हमारे जीवन में मिल जाता है, तो हमारे को उस शांति को बनाए रखने के लिए, आनंद को बनाए रखने के लिए प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना है। From this we understand that by obedience we are doing a favor to ourselves, we're not doing a favor to God. और ये बात समझने की है कि हम जब आज्ञाकारिता करते हैं तो इसमें हम प्रभु पे कोई एहसान नहीं कर रहे, या हम अपने लिए एहसान कर रहे हैं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। We are preserving the peace and joy He's given to us. प्रभु ने जो शांति आनंद हमें दिया है उसको हम बनाए रखते हैं। Our God is a selfless God. हमारा परमेश्वर जो है अपने बारे में सोचने वाला परमेश्वर नहीं है। He wants us to obey Him for our good, not for His good. वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने अपने भले के लिए, उसके भले के लिए नहीं। Yes, He is pleased when we obey Him, but we are the ones who are blessed when we obey Him. और हम खुश होता है जब उसकी आज्ञा मानते हैं, पर जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं आशीष हमें ही मिलती है। In the world we will have difficulty, we will have difficult people coming our way, difficult circumstances, but in walking in the ways of God, we will preserve this peace and joy. संसार में हमारे कठिन लोग हमारे जीवन में आते हैं, परेशानियां आती हैं, पर जब हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहते हैं तो ये शांति आनंद को अपने जीवन में हम बनाए रखते हैं। Through the cross we have entered into God's kingdom today. क्रूस के द्वारा से परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर जाते हैं। Romans 14:17 says, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit." और रोमियो 14 उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। Christ is our righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। When we receive Him into heart, we receive righteousness.
जब प्रभु को अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं, उसकी धार्मिकता को भी स्वीकार करते हैं, and you can begin to enjoy the peace and joy He's given us. और जो शांति और आनंद परमेश्वर ने दिया है हमें, उसका हम आनंद उठा सकते हैं। So very simply put, as we obey the teachings of Jesus, even though it may seem very difficult for many people, for us it's easy because we love God and we obey Him. और चाहे दूसरे लोगों को दिखे ये कठिनाई में दिखता हो, मुश्किल दिखता हो, पर हमारे लिए बहुत आसान है जब परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं। Now to be able to do that, the Lord gives us faith. और ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमें विश्वास देता है। Through faith we obey. विश्वास के द्वारा हम उसकी आज्ञा मानते हैं। Romans 1:5 says obedience comes from faith. रोमियो 1:5 में लिखा है कि आज्ञाकारिता जो है विश्वास करने से उसकी आज्ञाकारिता होती है। Very often I share with you that this obedience that comes from faith is a joyful obedience, not a burdensome obedience. और भाई ने कई बार बताया कि ये जो आज्ञाकारिता का जो विश्वास से आज्ञाकारिता मानते हैं, ये कोई कठिनाई या मुश्किल से नहीं है, ये बड़े आनंद के साथ हम ऐसा मानते हैं। In 1 John chapter 5, 3, 4 and 5 we read, और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3 से 5वें आयत में हम पढ़ते हैं, this is love for God to obey His commandments. और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, And His commandments are not burdensome. और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, For everyone born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। This is victory overcomes the world, even our faith. और वह वजह जिससे संसार पर हम जय प्राप्त करते हैं हमारा विश्वास है। Who is the one who overcomes the world? He believes that Jesus is the Son of God. और संसार पे कौन विजय प्राप्त करेगा? जो इस बात को विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। When you obey God by faith, then it's not a burdensome obedience, it's a joyful obedience. तो जब विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो ये जो आज्ञाकारिता है ये बोझ वाली नहीं होती, बड़े आनंद की आज्ञाकारिता होती है। Now let's go back to the test that God gave about to know them by the fruit. और हम उस बात पे जाएंगे, वो परीक्षा को देखेंगे कि परमेश्वर ने जो बोला कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे फलों से होगी। Hebrews 13:7 again. इब्रानियों 13:7। Remember your leaders अपने अगुवों को तुम स्मरण करो, who spoke the word of God to you. जिन्होंने परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया। Consider the outcome of the way of life. और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखो। We look at the fruit they have. और उनके फल जो उनके जीवन में जो फल आए उसको हम देखते हैं। And imitate their faith. और उनके विश्वास का अनुकरण करो। It means the what they have become ultimately is because of their faith. तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो बने वो अपने विश्वास के कारण से बने। If they have peace and joy, it's because they obeyed God by faith. और अगर उनके जीवन में शांति आनंद है तो इसका मतलब उन्होंने विश्वास से परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। If they have the joy of obedience, it's because they have faith. और क्योंकि उन्होंने ये आज्ञाकारिता का आनंद उनमें विश्वास था, आज्ञाकारिता को मानने के लिए, इसके लिए उनके जीवन में आनंद है। If they accomplish many things in the ministries because of their faith. अगर उन्होंने सेवकाई में बहुत फलवंत हुए हैं तो ये भी उनके विश्वास के कारण से। And look at the next verse, 8th verse. हम 8वें आयत को देखें। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। Put these two verses together. इन दोनों आयतों को एक साथ पढ़ें। Our faith, the author of our faith is Jesus. हमारे विश्वास का जो लेखक है प्रभु यीशु मसीह है। Hebrews 12:2 says, इब्रानियों 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। He is the source of our faith. वो हमारे विश्वास का करता है। And we all have a measure of faith which he has given us. Romans 12:3. और रोमियो 12वां अध्याय तीसरी आयत के अनुसार हम सब में विश्वास का एक अंश है जो उसने हमें दिया है। So just like the Lord gave those people in the Bible faith to do what they did and have a fruitful life. और जैसे उन्होंने विश्वास करके उन लोगों ने अपने जीवन में विश्वास के द्वारा से एक फलवंत जीवन जिया, He'll also give us faith. वो हमें भी वो विश्वास देगा। And that's why we must be constantly asking God for faith to be able to walk with them intimately and close. और इसलिए हमें विश्वास से ये परमेश्वर से मांगते रहना है उस विश्वास को कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के साथ एकता के साथ नजदीकी से चलते रहे। We look at the life of Enoch who walked with God 300 years. हम इनोक के जीवन को देखते हैं, 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। 11th chapter of Hebrews verse 5 and 6 specify. इब्रानियों 11वां अध्याय 5वें आयत में इसको बड़े स्पष्ट से लिखा गया है। By faith Enoch was taken from this life. विश्वास ही से अनोक उठा लिया गया। He could not be found because God took him away. He didn't taste death.
और उसने मृत्यु को नहीं देखा और उसको पता भी नहीं लगा क्योंकि उसने मृत्यु को चखा ही नहीं। Before is taken is commended as one who pleased God. और इसे पहले कि उठाया जाए उसकी गवाही दी गई कि परमेश्वर को इसने प्रसन्न किया है। And without faith is impossible to please God. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। We please God by living in obedience to His teachings. हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं जब उसकी आज्ञाकारिता, उसकी शिक्षा की आज्ञा को पे चलते हैं। For which we need faith. और उसके लिए विश्वास की जरूरत है। Without faith, we cannot please Him. बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न ही नहीं कर सकते। When you consistently please Him, what happens is they're able to walk with God, be intimately close to God. और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते रहते हैं, तो प्रसन्न करते हैं, तो उसके हम घनिष्ठता में उसके साथ चलते हैं। When you walk with God, then ministry happens. Our life is an extension of our walk with God, and we not only have a fruitful ministry, fruitful life, we'll have a peaceful, joyful life. तो जब हम उसके घनिष्ठता में चलते हैं, हमारी सेवकाई में भी फलवंत होता है और उसके कारण से हमारे जीवन जो है बड़ा शांति का जीवन हमारा होता है। And therefore, we should know what to ask God and why we're asking. तो हमें बड़ा निश्चय होना चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं और किस लिए मांग रहे हैं। Asking for the gift of faith. हम उससे विश्वास का दान मांगे। That by that gift of faith, we're able to obey Him joyfully. ताकि उस विश्वास के दान से हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता खुशी से माने। And thereby able to walk with God. और उसके कारण से परमेश्वर के साथ साथ चलें। Then what happens? We become an example to other people. और उसका कारण क्या, फल क्या होता है कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। When we look to the Lord, what happens is even our faces glow. तो जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमारे चेहरे भी चमकने लगते हैं। Psalm 34 verse 5 says, "Those who look to Him are radiant." और भजन 34:5 में लिखा है, जो उसकी ओर ताकते हैं उनके चेहरे चमकते हैं। Their faces are never covered with shame. उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं होते। And we look to Him means you want to walk with Him and depend on Him for everything. और जब उसकी ओर देखते हैं, इसका मतलब हर चीज के लिए उसको देखते हैं। And as we live by the Holy Spirit, He will make us become more and more like Jesus, and we will be radiant. Our faces will be radiant. और जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते जाते हैं और हमारे चेहरों पे चमक आती है। Peace and joy are infectious. ये शांति और आनंद जो है, ये बड़ा एक दूसरों को फैलती है। We enjoy the peace and joy, and also we are able to be a witness to other people. हम खुद उसका आनंद उठाते हैं, शांति और आनंद का, और दूसरों के लिए भी शांति आनंद के गवाह बनते हैं। So peace and joy is an integral part of the kingdom of God, to which we already entered. We are already in the kingdom of God. तो ये शांति आनंद जो है परमेश्वर के राज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। Now, not only that, when we live by faith and we face temptations, God will give us the strength to face those temptations. और ना केवल ये, जब हम विश्वास से चलते हैं और परीक्षा आती है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि हम उस परीक्षा में सफल हो सकें। 1 Corinthians 10:13 says, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, God is faithful. He won't allow you to be tested or tempted more than you can bear. कि तुम किसी भी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें उसको सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। With every temptation, we have to stand up on it. वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। And now this power is also given to us because we are in kingdom of God. और ये सामर्थ हमें इसलिए भी दी गई है क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। 1 Corinthians 4:20 says, "The kingdom of God is not a matter of talk, but of power." पहला कुरिन्थियों 4:20 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज जो है, राज्य बातों का नहीं परंतु सामर्थ का है। With the God's kingdom, we can experience that power. और जब परमेश्वर के राज में है तो हम उस सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। We don't depend on our strength, on our power, but on God's power. हम अपनी सामर्थ पे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर होते हैं। Ephesians 6:10 says, "Finally be strong in the Lord and in His mighty power." इफिसियों 6:10 में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Now the Holy Spirit gives us faith to be able to obey God. पवित्र आत्मा जी हमें सामर्थ देती है, विश्वास देता है कि हम उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। He also empowers us to say no to temptation. और हमें सामर्थ देता है कि हम परीक्षा को में ना कह सकें। The book of Acts chapter 1 verse 8, very familiar verse. Jesus tells the disciples, "Stay in Jerusalem." He says, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you." फिर तो काम 1:8 में बड़ी सफाई से लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में ही टिके रहना उस समय तक। There are so many works of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम हैं।
And you must remember that by ourselves we can do nothing. और हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। In John 15:5, Jesus says, यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा apart from me you can do nothing. कि मेरे अलावा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। But with him we can do all things because he is the one who anoints us with the Spirit. पर उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो हमें अपनी आत्मा का अभिषेक देता है। He is the one who pours the Holy Spirit upon us. वो पवित्र आत्मा जी हमारे पे उंडेल देते हैं। The anointing happened the first time on the day of Pentecost, 50th day after Passover. और ये पेंटिकोस के दिन लांघन पर्व के 50 दिन के बाद पहली बार पवित्र आत्मा जी आए। And Peter explains to all the people who had come there from different parts of the empire what has really happened. और जो पत्रस जो बताता है जो सारे राज्य के अलग-अलग छोर से जो लोग आए थे कि क्या हुआ। And in second chapter of Acts, verse 33, he says, और प्रेरित काम दूसरा अध्याय उसकी 33वीं आयत में वो कहता है, talking about Jesus, और यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए, exalted to God's right hand, he received from the Father the promised Holy Spirit, whom he has poured out upon us. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया कि तुम देखते और सुनते हो। After going back to God the Father, the Lord Jesus has received from the Father the Holy Spirit, whom he has poured out upon us. और परमेश्वर के पास दाहिने हाथ जाने के बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी जो है अपने लोगों पवित्र लोगों के ऊपर उंडेल दी। First to receive this anointing, we need to be thirsty for the anointing. और इस अभिषेक को पाने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि हमें इसकी प्यास होनी चाहिए। The Lord spoke about that in the Feast of Tabernacles on the last day of the feast. और फसह के उस पर्व के आखिरी दिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया। 7th chapter of John, verse 37 to 39. यूहन्ना 7वां अध्याय उसकी 37 से 39 में आयत हम पढ़ते हैं। He who is thirsty, let him come to me and drink. कि जो प्यासा हो मेरे पास आके मेरे पास आए। He who believes in me, as the scripture said, out of him shall flow rivers of living water. जो मुझसे विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। By this he meant the Spirit whom those who believed in were later to receive. और उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वालों ने पाने वाले थे। Up to that point, Spirit had not been given because Jesus had not been glorified. क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। His glorification means him going back to God the Father. और महिमा का मतलब कि पिता के पास वापस लौटना। After going back, he's been pouring out his Spirit upon his people, all those who are thirsty for the Spirit. और परमेश्वर के पास लौटने के बाद परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा को उंडेल दिया उन सब पे जो इसकी प्यास में थे। First of all, you must have a passion to be able to preserve this peace and joy. पहले तो हमारे अंदर ये जलन होनी चाहिए कि हम इस शांति और आनंद को अपने जीवन में बनाए रखें। Which means the passion to be able to obey him constantly. और हमारे अंदर ये जलन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि उसकी आज्ञाकारिता लगातार मानते रहें। Passion to say no to temptation. हमारे अंदर ये लगन होनी चाहिए कि परीक्षा को हम ना कह सके। For which we need a hunger for faith, more and more faith. और उसके लिए हमारे पास विश्वास की और भूख होनी चाहिए। Which means a thirst for the Holy Spirit. और इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जी की प्यास होनी चाहिए। And when anointed says we'll become more and more like Jesus. और जब हम उससे अभिषेक पाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते जाते हैं। The first category, peace and joy, the primary resource for that is faith given to us by the Spirit of God. और ये शांति आनंद पहला भाग हमने देखा और ये आता है परमेश्वर की आज्ञाकारिता से और जो परमेश्वर के विश्वास जो हमें देता है उसके द्वारा से आता है। Next week I'll speak about the other two categories. और अगले हफ्ते जो बाकी दो भाग रह गए उस पे हम बात करेंगे। Second category is love, goodness, kindness, gentleness. और वो अगला जो भाग है वो है प्रेम और दया और जेंटलनेस नम्रता। Kindness and gentleness. नम्रता और काइंडनेस दया। Okay. Then the third category is basically faith, patience and self-control. और फिर अगला जो भाग है विश्वास, संयम और अपने और विश्वास, धीरज और संयम। विश्वास, धीरज और संयम। विश्वास, धीरज और संयम। That's the third category. So these two categories I look at next Wednesday. और इन दोनों भागों को हम अगले बुधवार को देखेंगे। At the end of it, we'll understand how we can be God's fellow workers
In God working the Spirit, the gifts of the Spirit, the fruit of the Spirit in our lives. और हम देखें कैसे परमेश्वर जो हमारे जीवन में ये तो हमारे को फल देता है जो हमारे जीवन से प्रकट होते हैं. It's very exciting because when you realize everything is given to us freely by God, you only have to receive it by faith. और ये बड़े आशीष और बड़ी खुशी की बात हो जाती है, हम उत्साह की बात हो जाती है कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए सारे चीजें पहले से ही सब तैयार कर रखी है. God bless us as we take it very seriously, the word of God. और परमेश्वर हमारे को आशीष दे जब हम परमेश्वर वचन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं. God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष